Good morning, everyone. Today we will discuss the new chapter Accounting for Not for Profit Organization. This is the first chapter on accountancy of class 12th. This chapter will give you 10 marks in the session ending examination of CBSE of the class 12th. Moving ahead, if we just read the line not for profit, it means what? It means these are the organizations which don't work for the profit. Means the main purpose of these kind of organization is to provide services. On your screen you can see the meaning of the not for profit organizations. These are the organizations which are used for the welfare of the society and are set up as a charitable institutions with the main motive to provide services. It means these organizations don't have any motive of earning profit. Their main motive to provide services to a specific group or a public at large. इसको अगर हम इस तरह से समझें, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है बल्कि सर्विस प्रोवाइड करना होता है. लाइक योर स्कूल, हॉस्पिटल्स, देयर आर नंबर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस which provide the services. Some examples are given over there. Here are some examples of the not for profit organizations like club, charitable institutions, schools, religious societies for the promotion of art and culture. Here on your screen you can just see a picture of the Virat Kohli. He is standing with the kids of some Smile Foundation. This foundation works for some welfare of the society. So there the list is very long. This is not the only one foundation which work for the welfare of the society. If we just want to know something about more about the not for profit organization, we can come to know with the help of the characteristics of such organizations. On your screen you can just see these are the organizations are formed for providing services. Again and again this word has been given over there, providing services to a specific group or the public at large. Now you can just check the example like the education, healthcare, recreation, sport and so on without any consideration of caste, creed and color. Means no discrimination on the basis of the caste, creed and color. The sole aim is to provide service either free of cost or at the nominal cost, but not to earn profit. Means they provide the services, they charge a very nominal fees, but the purpose of these organizations is not to earn profit. These are the organized as a charitable trust, societies and subscribers to each such organizations are called members. Means the individuals who are the subscribers are known as members. As we all know, again and again I am just saying that these are the organizations, their main motive not to earn profit but to provide services. So how these organizations अर्न देयर रेवेन्यू, ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे कमाती हैं या इनकी इनकम्स क्या होती है. सो द थर्ड पॉइंट यू कैन जस्ट सी सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द मेंबर्स, डोनेशंस, लेगेसीज, ग्रांटीनेड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा. These are the main source of income which is earned by the not for profit organization. In short form we can also just say NPO. So in the coming slides
I will just use the word NPO. Actually, when these organizations not engaged in the manufacturing or any of the business activity, so that's why the sales and the sales cannot be the main source of income. That's why these are the source of income of the not-for-profit organizations. Fund raised by such organizations through various sources are created to capital fund or general fund. So many of the institute, they provide the fund to such organizations. So they also create some capital fund or the general fund. There is a bit of difference between the capital and the capital fund that we will discuss in the next slides. Accounting records of not-for-profit organization. It does not mean they don't prepare any kind of record, they don't prepare any kind of accounting record. Like the profit organization, they also prepare the records to maintain the books of account. In the profit organizations, the financial statements are prepared similar like in the not-for-profit organization. These are the common books of accounts are prepared. First one, the receipt and payment account. Second one, income and expenditure account, and the balance sheet. We will discuss further why the receipt and payment account, income and expenditure account, and the balance sheet. Why not trading account, profit and loss account. So before moving ahead, first we discuss the receipt and payment account. If we just see on our screen, receipt and payment account, as the name itself just says, it is the summarized picture of various receipt and payment. And one more thing, it is prepared at the end of the accounting year. It means what? It is prepared at the end of accounting year on the basis of the cash receipt and the cash payment. Cash receipt and the cash payment, it means only cash transactions will be recorded. Non-cash transactions like depreciation, gain on sale of assets, loss on sale of assets, these will not be recorded in the receipt and payment account. So always keep this point in your mind. Receipt and payment account is prepared on the basis of the cash transactions. We can just say only cash transactions are recorded in the receipt and payment account. Receipt and payment account gives summarized picture of the various receipt and payment. Various receipt and payment means capital receipt and the revenue receipt both will be recorded in the receipt and payment account. On your screen you can also just say receipt and payment account gives summarized picture of the various receipt and payment irrespective of whether they pertain to current period, previous period or succeeding period, or they are of capital or the revenue nature. Means in the receipt and payment account, the transactions of the current year, the year of which we are preparing the account, the transactions of the previous year but in cash, and the transactions of the succeeding year if received in the current year, they are whether they are of the capital or the revenue nature. Capital nature means these are the incomes which are of the non-recurring nature. And the revenue nature means these are the items, these are the transactions which are of the recurring nature. There are some other definitions also of the capital and the revenue nature. That's why it may be noted in the few minutes earlier I told you all this records only receipt and this records only cash transactions. So in this receipt and payment account we will not record the items which are of the non-cash nature like depreciation, profit on gain on sale of assets,
or loss on sale of assets. And always keep this point in your mind, it has been underlined over there. It is the real account. So most of the time this question may be asked कि what type of account it is. So it is a real account. I think you all have studied in the class 11th. There are three kinds of account. One is the real account, personal account, and the nominal account. So this is the real account. Here you can just see the pro forma of the receipt and payment account for the year ending. On your screen you can just see here the balance BD is given over there. Now what is the meaning of the balance BD? Balance BD means this is the balance which has been brought down from the last year. This is the opening balance. So always keep this point in your mind. This is the opening balance. It means this is the balance. This is the balance of the last year balance sheet. ये हमेशा याद रखिएगा आप, ये जो आपका ओपनिंग बैलेंस है ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की बची हुई जो कैश या बैंक में जो पैसा है वो यहाँ पर दिखाया गया है. Here you can just see the subscription. Basically this is the main source of all kind of NPOs. On your screen you can just see the subscription for the previous year, current year and the next year. यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आपको दिखाया गया प्रीवियस ईयर का भी, यहाँ प्रीवियस ईयर का इस साल मिल गया है. देखिए एक्चुअली वी आर प्रिपेयरिंग द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग. ये हम लोग करंट ईयर का ही बना रहे हैं यहाँ पर, लेकिन दिस इज़ द प्रीवियस ईयर मतलब नहीं मिला होगा तो इस साल हमें मिला है. ठीक है, प्रीवियस ईयर में इट मे बी आउटस्टैंडिंग. डेट्स वाई वी हैव रिसीव्ड द amount of the subscription of the previous year in this year, and this is the current year. So I think no doubt at all. What and next year, this is the advance received by the NPO for the succeeding year in the current. ये अगले साल का है या आने वाले सालों का है जो आपको करंट ईयर में मिल गया है. Here is the entrance fees, donation for building. This is the receipt side. Receipt side means all the items which are of the cash nature, which are of the cash transactions have been recorded in the receipt side. Only केवल कैश ट्रांजेक्शन ही यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं होगा. अगर आप इसको सही से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स मिल जाएंगे और रेवेन्यू नेचर के भी ट्रांजेक्शन्स मिल जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल डोनेशन फॉर बिल्डिंग मीन्स दिस डोनेशन हैज़ बीन गिवन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, सो दिस इज ऑफ द कैपिटल नेचर. ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अभी जनरल डोनेशन, दिस डोनेशन कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, एंड द लाइफ मेंबरशिप फी, दिस इज ऑल्सो ऑफ द कैपिटल नेचर. सो इफ यू जस्ट चेक, if we check the list of the receipt, we can just see in this list there are, it combines, it is the combination of both capital nature and the revenue nature, and all the transactions are of the cash transactions only. Now payment side means ये वो ट्रांजेक्शन्स है जिनका इस साल पेमेंट किया गया है कैश में. इसमें भी आप जब देखेंगे तो आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर ऑफ द कैपिटल नेचर और द रेवेन्यू नेचर. क्लास 11th में आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगाया होगा, वहाँ पर आपने बैलेंस शीट बनाई होगी और वहाँ पर आपने ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाया होगा. इन द ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट द ट्रांजेक्शंस, द आइटम्स shown in the trading and PL account, these are the revenue nature transactions. और बैलेंस शीट में जो ट्रांजेक्शन्स दिखाते हैं सब वो कैपिटल नेचर्स के होते हैं. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल्स
यहाँ पर आप देखें इन्वेस्टमेंट भी दिखाया गया यहाँ पर, द इन्वेस्टमेंट इज द कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन, इज द कैपिटल नेचर आइटम। ठीक है, इसके अलावा सैलरीज एंड वेजेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, दीज आर ऑफ द रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस या रेवेन्यू नेचर आइटम्स। तो मूविंग अहेड, I would like to tell you all, receipt and payment account is prepared at the end of a year. Number 1, to balance BD means this is the balance of the last year. In the same way, by balance CD, by balance CD means carried down. This will be the closing balance of the current year. यहाँ रिसीट साइड में जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे के सारे कैश रिसिप्ट हैं, फिर चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का, ये सारे के सारे पेमेंट्स हैं, सारे के सारे कैश में ही पेमेंट करे गए हैं। ये सारे के सारे चाहे फिर वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का। एक नोट दिया गया है, इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इट मे बी नोटेड दैट द रिसीट side of the receipt and payment account gives a list of the revenue receipt for the past, current and the future period as well as capital receipt। ये पहले ही बता दिया था मैंने आपको, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो रिसीट साइड होता है उसमें कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों के ट्रांजेक्शन्स लिखे जाते हैं, और वो उसमें जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो पास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर का भी होता है, करंट ईयर का भी होता है और फ्यूचर पीरियड के भी होते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली उसी तरह से पेमेंट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लिस्ट द रेवेन्यू पेमेंट, इसमें रेवेन्यू पेमेंट्स दिए गए होते हैं सारे के सारे, ऑल्सो द कैपिटल पेमेंट्स भी होते हैं लास्ट ईयर के, करंट ईयर के और फ्यूचर पीरियड्स के भी। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक बार आप पॉज करके 2-3 बार इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर, तो इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Income and expenditure account, it's a summary of the income and expenditure for the accounting year. It is like the profit and loss account. क्लास 11th में जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, इसी तरह से ये भी आपके इट्स लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रीपेयर्ड ऑन द एक्रूवल बेसिस। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रीपेयर्ड ऑन द कैश बेसिस एंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रीपेयर्ड ऑन द एक्रूवल बेसिस इन केस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इट इंक्लूड्स ओनली रेवेन्यू आइटम, इट्स ऑलरेडी अंडरलाइन करके रखा हुआ मैंने पहले से ही, एंड द बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट सरप्लस और डेफिसिट। जो भी डिफरेंस आएगा वो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। क्लास 11th में आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, वहाँ पर जो भी बैलेंस आते थे, अगर डेबिट बैलेंस आया है तो डेट वॉज द नेट लॉस, अगर क्रेडिट बैलेंस आया था डेट वॉज द नेट प्रॉफिट। यहाँ पर नेट प्रॉफिट नहीं कहेंगे, उसको सरप्लस कहा जाएगा, और जो लॉस आएगा वो डेफिसिट के नाम से जाना जाएगा, या फिर इसको एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, सरप्लस को एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है, सुनने से समझ में आ रहा कि इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, इट इज़ द सरप्लस। डेफिसिट excess of expenditure over income. So the income and the expenditure is prepared on accrual basis. इनकम एक्सपेंडिचर आपके accrual basis पे तैयार होते हैं। याद करिएगा, थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन विच बेसिस, याद हो जाए तो जरूर बताइएगा। विद द हेल्प ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये याद रखिएगा कि दिस अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर से एक चीज़ मैं आपको क्लास 11th का रिकॉल कराना चाहता हूँ। इन द क्लास 11th वी प्रिपेयर्ड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद द हेल्प ऑफ द ट्रायल बैलेंस, बट हेयर वी विल प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद द हेल्प ऑफ अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। द लॉजिक बिहाइंड इट, इसके पीछे लॉजिक ये है कि इनके जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ज़्यादातर कैश नेचर्स के होते हैं, डेट्स वाई दे डोंट प्रिपेयर
मैनी ऑफ द सब्सिडरी बुक्स, ये ढेर सारी सब्सिडरी बुक्स बनाते नहीं हैं। डेट्स वाई वी जस्ट टेक द हेल्प ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट टू गेट द अमाउंट ऑफ सरप्लस और डेफिसिट अलॉन्ग विथ सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन वही होंगी जो हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख नहीं सकते, जैसे आउटस्टैंडिंग हुआ या फिर आपके डेप्रीसिएशन हुआ, प्रॉफिट हुए, लॉस हुए, वो आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएंगे नहीं, तो वो सारे के सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिखा दी जाएंगे। मीन्स अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद लेनी पड़ेगी। उसकी हेल्प से वहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पहले बताया जा चुका है कि रिसीट साइड आपके रेवेन्यू नेचर्स के भी आइटम होंगे, कैपिटल नेचर्स के भी आइटम होंगे। पेमेंट साइड आपके रेवेन्यू नेचर्स के भी आइटम होंगे, कैपिटल नेचर्स के भी आइटम होंगे। तो रेवेन्यू नेचर्स के जो आइटम है वो आप पिक कर लीजिएगा वहाँ से पिक करने के बाद अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको दिखा दीजिएगा बाय आफ्टर मेकिंग सम नेसेसरी एडजस्टमेंट। वो अगली स्लाइड में आपसे डिस्कस भी किया जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। हाउ वी विल प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 पहली स्टेप दी गई है, परस्यू द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट थॉरली। सबसे पहले तो आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को पूरा फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक्सक्लूड द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश बुक। अभी 2 मिनट पहले आपको मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि जितने भी आपके ओपनिंग बैलेंस ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होते हैं वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की कैश है या बैंक है। इसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश एंड बैंक है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट का एसेट साइड में कैश और बैंक है, वो बचा हुआ पैसा है हमारे पास कैश के रूप में या हमारे बैंक अकाउंट में। तो ये इनको आप एक्सक्लूड कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ये आपके बैलेंस शीट का पार्ट है, ये आपके इनकम और एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है। इसके बाद क्या क्या एक्सक्लूड कर दीजिएगा। नंबर 1 एक तो सारी कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अकाउंट हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ द ओनली रेवेन्यू नेचर। तो जितने भी रेवेन्यू आइटम्स होते हैं केवल वही यहाँ पर दिखाए जाएंगे। इसके बाद जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं, कैपिटल पेमेंट्स होती हैं, वो यहाँ पर नहीं शो करी जाएंगी, तो आप उनको हटा दीजिएगा। वैसे ही सारी की सारी कहाँ जाने वाली है, बैलेंस शीट। उनका ट्रीटमेंट जो होगा बैलेंस शीट में होगा। फिर नीचे यहाँ लिखा भी है अलग से कि कंसीडर ओनली रेवेन्यू रिसीट, केवल रेवेन्यू रिसीट पे ध्यान दीजिए। और कहाँ मिलेंगी आपको इनकम, और जो आपको दिखाई जाए तो आपको दिखानी है इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसी तरीके से आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ये कहाँ दिखा देंगे आपके एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन आफ्टर मेकिंग सम एडजस्टमेंट्स। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो आपके रेवेन्यू रिसीट होंगी वो आपके इनकम साइड जाएंगी। कहाँ से लेंगे आप? ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड से लेंगे। इसी तरह जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे वो आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड से लेंगे अपना, वो आपके एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे। थोड़े से एडजस्टमेंट्स कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स नॉट प्रिपेयरिंग द रिसीट एंड पे, ये पहले ही मैंने बता चुका हूँ कि ये आपके कैश नेचर के नहीं होते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन ये नॉन कैश आइटम है, तो ये आपका नहीं दिखाया जाएगा। प्रोविजंस फॉर द डाउटफुल डेट्स इफ रिक्वायर्ड, दीज आर द प्रोविजन, दीज आर ऑल्सो द नॉन कैश नेचर। एंड द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई एसेट बेची गई है उस पर गेन हुआ है या लॉस हुआ है तो वो भी आपके रिसीट एंड पेमेंट में नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे आपको अलग से एडजस्टमेंट में दिए जाएंगे, जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे पूछा जा सकता है कि क्या डिफरेंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। यहाँ पर पेमेंट नहीं लिखा है तो आप ध्यान दीजिएगा। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले नेचर है। नेचर तो आप अब तक समझ गए होंगे कि इट्स लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किसकी तरह से है? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की तरह।
और ये इट्स अ समरी ऑफ द कैश बुक। ये बिल्कुल आपके जैसा आपने क्लास में कैश बुक पढ़ा था वो इस सेम है यहाँ पर, बस डिफरेंस केवल वो इतना ही है कि वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है और ये आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाया गया है। नेचर ऑफ द आइटम्स आप देखेंगे, रेवेन्यू नेचर्स के आइटम यहाँ पर दिखाए जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और यहाँ पर रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल नेचर के। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो सकें आपके। और इस वीडियो को आप एक बार, दो बार या तीन बार पॉज कर करके सुनेंगे और थोड़े से नोट्स हैं आप उनको भी थॉरली अगर देख लेंगे, समझ लेंगे तो आपका वैसे भी चैप्टर काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। पीरियड इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम रिलेट ओनली टू द करंट पीरियड। ये केवल आपके इसी साल के इंफॉर्मेशन के बेस इसी साल के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पर एक्चुअली में इसमें बनाया भी इसी साल के लिए गया, लेकिन इसमें आपको लास्ट ईयर के या सक्सीडिंग ईयर के और करंट ईयर के भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस। यहाँ डेबिट साइड आपका रिसीट को रिकॉर्ड करेगा। क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट या इनकम ऑफ गेन्स को रिकॉर्ड करेगा। यहाँ पर ये आपके क्रेडिट साइड ऑफ द जो रिसीट एंड पेमेंट का क्रेडिट साइड है वो आपके पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेगा। यहाँ पर डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करेंगे या फिर ये कहे कि नॉन कैश आइटम्स भी इंक्लूड करे जाएंगे। यहाँ पर डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है इनका यहाँ पर, लेकिन आपको कैश इन हैंड या कैश एट बैंक का या ओवरड्राफ्ट का आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मिल सकता है दोनों। क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट्स, जो आपका यहाँ पे बैलेंस निकलेगा वो किस नाम से होगा, या तो सरप्लस होगा, वो डेफिसिट होगा, या आप उसको इस तरह से कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। यहाँ पर आपके जो बैलेंसेस वो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कैश इन हैंड होगा और कैश एट बैंक होगा एट द एंड ऑफ द ईयर होगा आपका। तो ये आसान है, उतना टफ नहीं है समझने के लिए। एक दो बार सुनेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आप अगर देखें यहाँ पर बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट देखिए आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी प्रिपेयर करी और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी प्रिपेयर करती है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय। बस आसान ये होता है कि वहाँ पर हमें ट्रायल बैलेंस मिल जाता है तो थोड़ा सा आसान हमारे लिए हो जाता है बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना। यहाँ पर हमारे पास ट्रायल बैलेंस नहीं है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको क्वेश्चंस को समझने के लिए। जैसे प्रिपरेशन ऑफ देयर बैलेंस शीट इज ऑन द सेम पैटर्न एज डेट ऑफ द बिजनेस एंटिटी। ये उसी तरह से बैलेंस शीट बनेगी जिस तरह से आपकी बिजनेस एंटिटीज बैलेंस शीट बनाती हैं। दूसरा, देयर विल बी अ कैपिटल फंड और द जनरल फंड इन प्लेस ऑफ द कैपिटल, और यहाँ पर कैपिटल नहीं मिलेगी आपको बल्कि कैपिटल फंड और जनरल फंड मिलेगा, और द सरप्लस और द डेफिसिट एज पर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज आइदर एडेड या डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड। सरप्लस और डेफिसिट थोड़ी देर पहले बताया था, ये आपका बैलेंस होगा जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वहाँ जो बैलेंस आएगा, सरप्लस आया तो प्लस कर दीजिएगा, डेफिसिट आया तो माइनस कर दीजिए। किससे कर देंगे? कैपिटल फंड से या जनरल फंड से, जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद कुछ आइटम्स जो कैपिटलाइज्ड कर दिए गए लाइक द लेगेसीज एंड द लाइफ मेंबरशिप, जो डायरेक्टली आप कैपिटल फंड में, ये आपको बाद में भी डिस्कस किया जाएगा। अभी दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इसके बाद जब अगला लेक्चर जब क्लियर किया जाएगा जो उसका वीडियो होगा तो आप उसमें समझ लीजिएगा अच्छे से। बिसाइड्स द कैपिटल ऑफ द जनरल फंड देयर में बी सम अदर फंड क्रिएट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, भाई इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, अगर किसी फंड के पहले कोई नाम यहाँ पर दे दिया जाए, इट मीन्स दिस फंड विल बी यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। लाइक यहाँ पर देखें इस फंड से पहले बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये फंड केवल बिल्डिंग पर्पस के लिए यूज होगा। स्पोर्ट्स फंड, ये इस फंड से पहले स्पोर्ट्स लिखा, इसका मतलब ये जो फंड है केवल स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए ही यूज किया जाएगा, इसके अलावा किसी भी एक्टिविटी के लिए यूज नहीं किया जाएगा। ये भी सारे के सारे लायबिलिटी में दिखाए जाएंगे लेकिन सेपरेटली दिखाए जाएंगे। इसके बाद आप कैसे तैयार करेंगे बैलेंस शीट अपनी, यहाँ पर ये देख सकते हैं। नंबर 1, टेक द कैपिटल ऑफ द जनरल फंड एज पर द ओपनिंग बैलेंस शीट। आपको देखिए यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है या क्वेश्चन में नहीं दी गई तो फर्स्टली वी हैव टू प्रिपेयर द
ओपनिंग बैलेंस शीट फॉर गेटिंग द अमाउंट ऑफ द कैपिटल फंड। या अगर कैपिटल फंड अलग से दे दिया है तो फिर कोई बात नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन पेपर में मिलनी चाहिए फॉर गेटिंग द कैपिटल और जनरल फंड। अगर ओपनिंग जब बैलेंस शीट नहीं दी गई है तो आपको बना लेना पड़ेगा, 2 मिनट लगेगा, आप जल्दी से ओपनिंग बैलेंस शीट बना लीजिएगा, वहाँ से बैलेंस पता कर लीजिएगा, डेट बैलेंस विल बी द कैपिटल ऑफ द जनरल फंड एंड ऐड सरप्लस फ्रॉम द इनकम, जो इनकम एक्सपेंडिचर से आपने सरप्लस निकाला है या डेफिसिट जो भी आपने निकाला है उसको अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर दीजिएगा। सरप्लस है तो ऐड कर दीजिएगा और डेफिसिट है तो वो लेस कर दी। इसके बाद कुछ फर्दर आइटम जैसे लेगेसीज है, लाइफ मेंबरशिप फीस है या डायरेक्टली आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ टेक ऑल द फिक्स्ड एसेट्स, वो सारी की सारी फिक्स्ड एसेट्स ले लीजिए। ये तो पता ही है आप लोगों को पहले से कि सारी एसेट्स आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड चली जाएंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा एसेट्स लिखते समय जरूर याद रखिएगा कौन कौन सी एसेट्स ली जाएंगी जो बेची नहीं गई हैं, डिस्कार्डेड नहीं है या डिस्ट्रॉय नहीं हो ड्यूरिंग द ईयर, विद एडिशन फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब ये है कि आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आप देखिएगा रिसीट साइड कुछ आपके ढेर सारी एसेट्स पड़ी होंगी। अगर वो एसेट्स पड़ी हैं इसका मतलब या तो एसेट्स बेच दी गई हैं वो, क्योंकि अगर रिसीट में अगर कोई एसेट्स आपकी रिसीट साइड आई है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, इसका मतलब पैसा मिला है हमको, तो पैसा कैसे मिला होगा, या तो बेची गई होगी तभी तो आया होगा पैसा। इसके बाद आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मीन्स अगर कोई एसेट बिकी होगी तो आपके रिसीट साइड में, रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड में वो पड़ी होगी, उसको जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार। कभी कभी उसमें प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट करना पड़ता है तो प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। एंड शो देम ऑन द एसेट साइड। इतना कैलकुलेट करने के बाद आप सबको एसेट साइड में लिख देंगे। मतलब कहने का ये वो फिर से एक बार समझ लीजिए, टेक ऑल द फिक्स, सारी के सारी फिक्स्ड एसेट्स ले लीजिए। सारी की सारी फिक्स्ड एसेट्स का मतलब हो गया कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट आपकी दी गई है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स दी गई हैं। अगर वो एसेट्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो इसका मतलब नहीं बेची गई है, तो उसमें आप डेप्रिसिएशन चार्ज करके आप एसेट्स में लिख दीजिएगा। अगर वो बिकी होंगी उनमें से कोई पार्ट अगर बिक गया होगा तो आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड में एसेट्स दी गई होगी, या अगर नई कोई एसेट्स खरीदी गई होगी तो आपके रिसीट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड लिखी गई होगी। तो जो बेच दी गई है उसे आप माइनस कर दीजिएगा, जो आपने नई खरीद ली है जो पेमेंट साइड लिखी हुई है, इसका मतलब इस साल वो खरीदी गई है उसे आप प्लस कर दीजिएगा। इसके बाद उस पर डेप्रिसिएशन जो आपने कैलकुलेट करके रखा हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया हुआ है उसको आप उससे माइनस कर दीजिएगा। देन आप उसको अपने करंट ईयर की बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो कर दीजिएगा। इसी तरह कंपेयर द आइटम ऑन द रिसीट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विद द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के आइटम्स को कंपेयर कर लीजिए अपने इनकम साइड के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से। ये इसलिए है क्योंकि कुछ कभी कभी क्या होता है सब्सक्रिप्शन है जो ड्यू है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके जो वहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट साइड में सब्सक्रिप्शन दिया गया वो कम है, लेकिन नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कितने मेंबर्स हैं और पर मेंबर इतने रुपए हमको सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, तो अमाउंट ज़्यादा आ रहा है। लेकिन ऊपर जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो अमाउंट दिया गया है वो आपका कम है, इसका मतलब बीच में डिफरेंस आ रहा है। तो वो डिफरेंस सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट येट रिसीव, ड्यू हो गया लेकिन अभी तक मिला नहीं। इसी तरह कोई इनकम ऐसी होगी जो एडवांस आपको रिसीव हो गई है, या फिर आप देखें सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नियर ड्यूरिंग द, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर कोई एसेट अगर बेची गई होगी तो आपकी रिसीट साइड में लिखी गई होगी वो, तो उसे आप ज़रूर से ज़रूर देखें क्योंकि वो एसेट्स को आपको माइनस करना पड़ेगा। एंड आइटम्स टू बी कैपिटलाइज्ड दैट इज टेकन डेट टू द बैलेंस शीट। कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो सीधे कैपिटलाइज्ड कर दी जाती है, जैसे लेगेसीज हुआ, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, मैं थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अगर कोई आपका स्पेसिफिक फंड है, ये फिलहाल बाद में डिस्कस भी करेंगे जब फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ाई जाएगी आपको, जब फंड बेस्ड अकाउंटिंग का नया लेक्चर मैं अपलोड करूँगा तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन द फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा। वैसे सिंपली मैं अभी थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। जितने भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग होते हैं ये स्पेसिफिक फंड है, उससे जो मिलने वाली जितने भी इनकम है वो उसी स्पेसिफिक फंड में ऐड कर दी जाएगी, उस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसी से माइनस कर दी जाएंगे।
इसी तरह कंपेयर कर लीजिए आइटम्स ऑफ द पेमेंट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विद द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? ताकि कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे वो आपको पता करने पड़ेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे वो थोड़े आपको देखने पड़ेंगे। अगर कुछ आपने एसेट परचेज, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कोई एसेट्स है अगर आपने परचेज करी है तो वो कहाँ मिलेगी आपको? वो आपको मिलेगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में, इसलिए आपको देखना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन है तो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड आपने दिखाया होगा तो ये माइनस करना पड़ेगा। स्टॉक ऑफ द कंज्यूमेबल आइटम्स लाइक स्टेशनरी हैंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश इन हैंड एट द कैश एट बैंक। ये थोड़ी देर पहले आपको बताया जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश इन हैंड कैश एट बैंक है ये आपके करंट ईयर की बैलेंस शीट का बैलेंस है आपका कैश इन हैंड कैश एट बैंक का। इसके बाद ये लेक्चर आपका ओवर हो गया। अगर कहीं पर मैं जल्दी बोल गया हूँ तो उसको पॉज करके थोड़ा सुन लीजिएगा ध्यान से। अगर आवाज़ अगर धीमे आ रही हो तो आप ईयरफोन लगा कर चेक कर सकते हैं। इसके ये सारे लेक्चर के बेसिस पर एक ऑनलाइन क्विज तैयार किया गया है, इसका लिंक यहाँ पर नीचे दिया गया है। चूँकि वीडियो में आप इसको नहीं, आपको टाइप करना पड़ेगा। आप टाइप अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँगा। सो थैंक्स टू एवरीवन।